Hello students, welcome in this lecture. In this lecture we will discuss about the Rawls theorem and mean value theorem. So first I will discuss that what is Rawls theorem. So suppose f of x is a function. Suppose f of x is a function defined in closed interval a to b such that f of x is continuous in a closed interval a to b and f of x is differentiable in open interval a to b, and also f of a is equal to f of b. Then there exists at least one c belonging to the open interval a comma b where f dash c is equal to 0. So this complete statement is called as Rawls theorem. So what is Rawls theorem? Rawls theorem stated that suppose f of x is a function which is defined in closed interval a to b, that means the function having this domain, okay, and there are some conditions for Rawls theorem, and the first condition is that f of x must be continuous in the closed interval a to b, and f of x is also differentiable in open interval a to b. कंटिन्यूअस का मतलब आपको पहले से ही पता है कि मतलब फंक्शन में कहीं पे भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, हर जगह फंक्शन कंटिन्यूअस होने का मतलब होता है कि आप उसका ग्राफ जो है वो पेन के वन स्ट्रोक में बना सकते हो, तो वैसा होना चाहिए। डिफरेंशिएबल होने का मतलब होता है इन एवरीवेयर बिटवीन a comma b there exists a unit tangent of finite slope, so that function must be differentiable in that interval, open interval a to b, and one more condition is f of a must be equal to f of b, like a पे जो वैल्यू है फंक्शन की और b पे जो वैल्यू है वो दोनों ही इक्वल हो जाए, then there exists at least one c belonging to a comma b, that means यदि ये तीनों कंडीशन कंटिन्यूअस होना, इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा यदि फंक्शन a टू b में, और f of a f of b के बराबर होगा, तो एक वैल्यू जरूर होगी a कॉमा b के बीच में, सपोज दैट इज c, वेयर f डैश x बिकम्स 0, c पॉइंट पे f डैश x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं ग्राफिकली, मान लीजिए एक फंक्शन है, ओके, और इसका ग्राफ जो है वो इस तरीके से है, a से लेके b तक, सपोज दिस इज a पॉइंट, दिस इज b पॉइंट, एंड दिस फंक्शन हैविंग द दिस इज f of x, सो दिस पॉइंट इज हैविंग a पे जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, f of a, और ये जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, f of b। सो f of a एंड f of b दोनों ही सेम हाइट पे, इसका मतलब क्या है, f of a and f of b both are equal, okay, this point is a comma f of a and this point is b comma f of b. So now we can easily interpret from the figure that there exists one point between a to b, that is c, where the slope of the tangent becomes 0. At this point the tangent slope is nothing but 0. So this theorem precisely say that if f of a is equal to f of b, function is continuous in the closed interval a to b and differentiable in the open interval a to b, then there exists at least one point where the slope of the tangent becomes 0. That is the theorem.
and that is called Rolle's theorem. Then there exists at least one, क्यों बोला गया है उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि देखिए कभी यदि मान लीजिए इस तरीके से फंक्शन है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, तो यहाँ तो आपको एक ही वैल्यू c की दिख रही होगी, लेकिन मान लीजिए कभी इस तरीके, ओके, just like this. So in this case you can say this is 0, this is pi, suppose this is 2 pi, जैसे sin x में होता है, यदि आप ध्यान से देखें तो sin x का ग्राफ 0 से 2 pi तक इसी तरीके से बनता है। तो आप देखेंगे ध्यान से कि f of 0 एंड f of 2 pi ये दोनों ही बराबर होते हैं, ठीक है ना, दोनों ही 0 होता है। लाइक f of x जो है वो यहाँ पे कितना है हमारा sin x है, तो sin x जो फंक्शन होता है उसमें f of 0 that is sin 0 is also 0 and sin 2 pi is also 0. Sin x is also continuous in 0 to 2 pi and also differentiable in open interval 0 to 2 pi. Then there exists at least one point, but you can see here 0 से 2 pi के बीच में दो पॉइंट है, जैसे कि जहां पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट बिकम 0, दैट मींस f डैश c 0 हो गया है, और c की वैल्यू यहाँ पे जैसे पाई बाई 2 और इधर यहाँ पे इसके लिए ये 3 पाई बाई 2 होता है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके के जो फंक्शंस का जो है वो बिहेवियर हम बता सकते हैं कि वो कितने पॉइंट्स पे उसका डिफरेंशिएशन 0 हुआ है। सो दैट इज द थ्योरम दैट इज कॉल्ड रॉल्स थ्योरम, बट द कन्वर्स ऑफ द रॉल्स थ्योरम इज नॉट ट्रू। दैट मीन्स इस थ्योरम का जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। दैट मीन्स यदि मैं कहूं कि f डैश c इक्वल टू 0 हुआ है तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दैट इज नॉट ट्रू। So the converse of the Rolle's theorem is not true. You can note this point that converse of Rolle's theorem is not true. That means if f dash x, f dash c, f dash x is equal to 0 in open interval a comma b, then it is not necessary that f of x must be continuous, differentiable, must be continuous in closed interval a to b, differentiable in open interval a comma b, and f of a is equal to f of b। ये जरूरी नहीं है, समझ रहे हैं बात? क्या अभी क्या बताया कि रॉल्स थ्योरम में क्या है कि यदि कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल a टू b में कंटिन्यूअस है, ओपन इंटरवल a टू b में डिफरेंशिएबल है और f of a इक्वल टू f of b होगा, then there exists at least one point between a to b where f dash x must become 0. Okay, but the converse of this theorem is not true. That means f dash x जरूर 0 हुआ है a से b के बीच में, बट ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, तीनों के तीनों ही, दैट इज नॉट नेसेसरी। जैसे कि देखिए, मान लीजिए कि मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ और ग्राफिकली अभी डिस्कस कर रहे हैं। एक फंक्शन है एक्स वाई एक्सिस में, इस तरीके से बना रहा हूँ मैं, ठीक है, इस तरीके से सिंपल बनाया। ये स्टार्टिंग पॉइंट है ए और ये है बी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ध्यान से, तो यहाँ पे एक पॉइंट है सी जहाँ पे f डैश c क्या हुआ है, 0 हो गया है। दैट मीन स्लोप ऑफ द टेंजेंट यहाँ पे 0 हुआ है। लेकिन क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? f ऑफ a क्या f ऑफ b के बराबर है? तो f ऑफ a तो अपना ये रहा है ना, और f ऑफ b कितना है, अलग पॉइंट पे है, ठीक है ना। सो दिस इज f ऑफ b, ये वाला पॉइंट। सो f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू f ऑफ b, यू कैन इजीली सी हियर f ऑफ a f ऑफ b के बराबर नहीं है, लेकिन f डैश c तो फिर भी 0 है, तो कन्वर्स इस थ्योरम का ट्रू नहीं है। जैसे यहां देखिए दूसरा है कि जैसे कि मैं एक फंक्शन ले रहा हूं और वो जो है वो उसको मैं डिसकंटिन्यूअस कर दे रहा हूं, क्लियर।
ये ए है, ये बी है, यहाँ पे ये फंक्शन का सी पॉइंट पे एफ डैश सी 0 हो रहा है। लेकिन यदि आप ध्यान से देखें, अभी मैंने एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी बराबर लेकर के रखा है, चाहूं तो वो भी ना रखूं, तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई ना हो, लाइक कंटिन्यूटी की, डिफरेंशिएबिलिटी की और एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर ना हो, तब भी फंक्शन एफ डैश एक्स उसका 0 हो सकता है। तो रॉल्स थ्योरम जो है ना, वो उसका कन्वर्स जो है वो ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, ये हमें समझना होगा। तो रॉल्स थ्योरम पे पहले तो एक मैं क्वेश्चन करवा देता हूं, जिससे कि रॉल्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और फिर मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट दिस प्रॉब्लम, दैट इज वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 3 ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 इन -3 to 0। तो जैसे ही रॉल्स थ्योरम का प्रॉब्लम आपको वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले देखिए कि फंक्शन जो है क्या इस रीजन में कंटिन्यूअस है, -3 to 0 क्लोज इंटरवल में। तो यदि मैं देखूं तो x into x plus 3 is a polynomial function, so it is a continuous everywhere, and this is exponential function e to the power minus x by 2। ऊपर भी जो है वो कंपोजिशन है जरूर -x/2 का, बट ये भी जो है वो पॉलिनोमियल ही है, लीनियर टाइप का फंक्शन है। तो e टू दी पावर x तो होता ही है आपका एवरीवेयर कंटिन्यूअस, तो e का पावर -x/2 भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस है। तो -3 से 0 के बीच में ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा, बिकॉज कंटिन्यूअस मल्टीप्लाइड बाय कंटिन्यूअस इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, so you don't have to check it further for continuity. So we can easily say that f of x is continuous in closed interval -3 to 0. Now if you talk about the differentiability of the function, because in the Rawls theorem we must check that a function is differentiable or not. So again the same happens. We know this fact that every polynomial function is differentiable everywhere, so this is a differentiable function, and e to the power -x/2 is again a differentiable function, because exponential function is a differentiable function। और यहाँ पे पावर में भी जो है वो भी पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल भी डिफरेंशिएबल होता है, e का पावर x भी डिफरेंशिएबल होता है, तो e का पावर -x/2 भी एवरीवेयर डिफरेंशिएबल होगा, और डिफरेंशिएबल इनटू डिफरेंशिएबल इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, दैट इज द थ्योरम। सो वी मस्ट से दैट f of x is also differentiable in open interval -3 to 0। वैसे तो पूरे ही रियल नंबर पे ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, बट फॉर satisfying the Rawls theorem condition we have to write like open interval -3 to 0। Now we will say what is f of -3? So what is f of -3? So f of -3 is obviously it is -3 into -3 plus 3 e to the power minus of -3/2, and it is -3 into 0 e to the power 3/2, and that is all 0, because 0 multiplied by any number is 0. Now we have to find f of 0, and that is equal to 0 into 0 plus 3 e to the power -0/2, and that is 0 because 0 multiplied by any other number is also 0. So we can easily see here f of -3 is equal to f of 0. So all these three conditions of Rawls theorem is satisfied here. That means Rawls theorem is applicable. Okay, सबसे पहले तो Rawls theorem applicable होना चाहिए, फिर हम उसको वेरीफाई करेंगे। So here we can say that here Rawls theorem is applicable. That means Rawls theorem को applicable होने के लिए दैट मीन्स ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तभी हम कहेंगे कि रॉल्स थ्योरम अप्लीकेबल है यहाँ। और फिर हम ये शो कर देंगे कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन इस रीजन में कम से कम एक पॉइंट पे तो 0 हुआ ही है, तो इसके लिए हम f डैश x निकालेंगे इसका, ठीक है। तो द नेक्स्ट इज टू फाइंड f डैश x। So we will find the differentiation of this function. So what is f dash x? क्या होगा इसका? तो आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो e का पावर -x/2 का डिफरेंशिएशन होगा, x इंटू एक्स प्लस 3 कॉमन होगा, और e का पावर -x/2 का डिफरेंशिएशन होगा e टू द पावर -x/2 इंटू -12, ओके, प्लस
e to the power माइनस एक्स बाई टू एंड x इंटू एक्स प्लस थ्री का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका 2x प्लस थ्री। ओके, कैसे निकाला समझ लीजिए, x इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर एंड द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x एंड x इंटू थ्री इज 3x एंड 3x का डिफरेंशिएशन 3। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन आ जाएगा। क्लियर? सो वी कैन इजीली से दैट फॉर x इक्वल टू c f dash c can be written as c into c plus 3 e to the power minus c by 2 minus 1 by 2 यहाँ पे आप लिख सकते हैं। क्लियर? बिकॉज यहाँ पे माइनस 1 by 2 लगा हुआ है, तो माइनस 1 by 2 अभी फिलहाल के लिए मैं इसे यहीं रख देता हूँ, प्लस e to the power माइनस c by 2 into 2c plus 3। इसी को मुझे जीरो के बराबर पुट करना है और वहां से c की वैल्यू निकालनी है जो कि इसके अंदर में से होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ इसको आगे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ e का पावर माइनस सी बाई टू यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो e का पावर माइनस सी बाई टू तो यहाँ से कॉमन आ जाएगा और फिर आएगा माइनस हाफ टाइम्स c इंटू सी दैट इज सी स्क्वायर प्लस 3c प्लस 2c प्लस 3। ओके, we can get like this. Now we will simplify it. It become e to the power minus c by 2 and this become 2 is the LCM, so it is 1 by 2 minus c square minus 3c plus 2 into 2c that is 4c plus 6. And in the next step we can easily write half times e to the power minus c by 2 and this is minus c square minus 3c plus 4c is plus c plus 6 and this can also be written as half times e to the power, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस हाफ टाइम्स e to the power minus c by 2 into c square minus c minus 6 and now put it equal to 0. okay, because f dash c 0 होना चाहिए कम से कम एक वैल्यूज के लिए, ये हमें शो करना होता है रॉल्स थ्योरम। क्लियर? so now we will put it equal to 0. so put f dash c is equal to 0, we get half minus half times e to the power minus c by 2 into c square minus c minus 6 equal to 0. And that simply implies that, because this simply implies that e to the power minus c by 2 equal to 0 or c square minus c minus 6 equal to 0. And as we know this fact that for any value of c it cannot be 0, so it is no solution it has and not possible, you can easily say, because e to the power x is always greater than 0 for every x belonging to real number. You must remember it. But this can be solved as c square minus 3c plus 2c minus 6 equal to 0 and from here we get c into c minus 3 plus 2 into c minus 3 equal to 0 and from here we get c minus 3 into c plus 2 equal to 0, so we get c equal to 3 and minus 2. okay, but if you see here 3 is not in the domain of the given function and the minus 2 here, minus 2 is belonging to the open interval minus 3 to 0, that was the given in the closed interval. फंक्शन का डोमेन यही दिया हुआ था minus 3 to 0. ओके, और वहां पे minus 2 बिलोंग कर रहा है, 3 is not belonging to this range set minus 3 to 0, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक कम से कम आपको मिल जाना चाहिए इस रेंज इस डोमेन में जहाँ पे f dash c 0 हुआ है। तो f dash c 0 हुआ है कहाँ पे? minus 2 पे, और minus 2 कहाँ से को बिलोंग कर रहा है? फंक्शन के डोमेन को बिलोंग कर रहा है। तो हियर रॉल्स थ्योरम वेरीफाइड। So by using this type of problem we can understand the concept of Rolle's theorem. आगे देखते हैं। The next theorem is LMVT and that is called Lagrange's mean value theorem. तो इसको समझते हैं ये क्या स्टेट करता है। So for this suppose f of x is a function defined in
defined in closed interval a comma b such that f of x is continuous in closed interval a comma b and f of x is differentiable in open interval a comma b, then there exists at least one c belonging to the open interval a comma b where f dash c is equal to f of b minus f of a divided by b minus a. This is the Lagrange's मीन वैल्यू थ्योरम. क्या है थ्योरम उसको समझ लीजिए. सेम रॉल्स थ्योरम का ही एक रॉल्स थ्योरम जो है वो मीन वैल्यू थ्योरम का एक स्पेशल केस है. यहाँ पे क्या कहा गया कि कोई फंक्शन है जो कि ए टू बी क्लोज इंटरवल में डिफाइंड है, मतलब ये इसका डोमेन है इस फंक्शन का. एंड इस तरीके से है कि एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है ए टू बी क्लोज इंटरवल में एंड एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी. और रॉल्स थ्योरम की जो तीसरी कंडीशन थी वो यहाँ जरूरी नहीं है कि एप्लीकेबल हो. एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी रॉल्स थ्योरम में वो तीसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई होना चाहिए था. यहाँ पे एफ ऑफ ए should not necessarily equal to f of b. Then there exists at least one c belonging to the open interval a comma b where f dash c is equal to f of b minus f of a upon b minus a. इस बात को समझते हैं एक ग्राफ ऑफ फंक्शन से. तो मैं यहाँ पे एक तरीके से एक फंक्शन ले रहा हूँ, ठीक है. दैट इज f of x. This point is starting point is a, the end point is b. Okay, and now this is f of it. This point is a, this is point p. Okay, suppose this point is p and it must be a comma f of a, and this point is q. Suppose this point must be b comma f of b. If I join this point to P to this point Q, then there will be a chord to this curve PQ. Now if I find the slope of the chord PQ, the slope of chord PQ must be slope of chord PQ is equal to f of b minus f of a. You can find the slope of any line by using this formula upon b minus a. That is the slope of the chord PQ. You can easily say that this function is continuous in the closed interval a to b and also differentiable in this interval a to b. The Rawls theorem states that if such type of condition happens, then there exists at least one point. C between a to b, where f dash c, that means the slope of the tangent, becomes equal to f of b minus f of a upon b minus a. Okay, so what does it mean? That at the point C there exists at least one tangent which slope is same as the slope of the line PQ. जो स्लोप PQ लाइन का होगा वैसा ही स्लोप का एक लाइन जरूर हम खींच सकते होंगे किसी न किसी कम से कम एक पॉइंट पे जो कि ए से बी के बीच में होगा. जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नहीं दो पॉइंट है. जैसे C1 मान लीजिए और यहाँ C2 मान लीजिए. तो C2 भी एक पॉइंट है जहाँ पे स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या हो गया है, पैरेलल टू टेंजेंट का जो टेंजेंट जो लाइन है उसका स्लोप उतना ही होगा जितना स्लोप PQ लाइन का है. तो यही थ्योरम जो है उसको हम क्या कहते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं. ठीक, और रॉल्स थ्योरम इसी का स्पेशल केस है. क्यों? क्योंकि रॉल्स थ्योरम क्या था कि एफ डैश सी 0 हो जाएगा जब एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी होगा. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है एफ ऑफ
ए यदि एफ ऑफ बी के बराबर हो जाएगा तो एफ डैश सी की वैल्यू 0 हो जाएगी। आप देख ही सकते हो, एफ ऑफ ए की जगह एफ ऑफ बी पुट कर दो तो ऊपर तो 0 ही हो गया। तो ये थ्योरम जो कि मीन वैल्यू थ्योरम है वो ये है कि फंक्शन यदि कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है ए से बी के अंदर तो कम से कम एक पॉइंट जरूर होगा, है ना, जहां पे फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है दैट मीन स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो होगा वहां उस पॉइंट पे वो किसके बराबर हो जाएगा, द स्लोप ऑफ द कॉर्ड ज्वाइनिंग बिटवीन द पॉइंट P and Q. That is the theorem of Lagrange's mean value theorem. And again we can easily say that the converse of this theorem is not true because the same is applicable for Rolle's theorem. Converse वहां पे भी ट्रू नहीं है, यहाँ पे भी ट्रू नहीं है। कन्वर्स जो है वो इस थ्योरम का ट्रू नहीं होगा। समझ रहे हैं बात? इस थ्योरम का जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं है। इसका मतलब ये है कि एफ डैश सी भले ही एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए के बराबर हो जाए ए से बी के बीच में, लेकिन ये जरूरी नहीं होगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल हो ही। फंक्शन यदि कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है तब तो एफ डैश सी जरूर इसके बराबर होगा, ये एलएमवीटी है। बट एलएमवीटी का कन्वर्स ट्रू नहीं है। समझ रहे हैं बात? सो यहाँ पे एक नोट करके आप लिख सकते हैं, नोट दिस पॉइंट दैट Rolle's theorem is a special case of LMDT when f of a becomes equal to f of b। यही तो होता है, f of a f of b के बराबर। एक एक्स्ट्रा केस तो यही होता है ना Rolle's theorem में। बाकी LMDT में f of a equal to f of b हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो f डैश c की वैल्यू कितनी होती है, f of b माइनस f of a अपॉन b माइनस a। लेकिन f of a f of b के बराबर हो जाएगा तो f डैश c 0 हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड Rolle's theorem। सो ये दोनों ही थ्योरम जो है उस पर हमें क्वेश्चन एक एक करके मैं कर देता हूँ। LMDT पे क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। Now we will do one problem on LMDT. So the question is find C of LMDT of f of x equal to square root of x minus 1 in 1 2 3। तो जैसे यहाँ पे आप ध्यान से देखिए तो स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 है। जैसा कि हम जानते हैं कि x माइनस 1 इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन एंड इट इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। और जो कि रूट अंडर x जो होता है वो भी ग्रेटर देन 0 पे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है ना, रूट अंडर x इज कंटिन्यूअस इन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 है तो जैसे कि आपको पता होगा कि x माइनस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डोमेन निकालने के लिए करते हैं तो यहाँ से हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा जो कि इस फंक्शन का डोमेन। क्लियर? तो x माइनस 1 है इनसाइड में और इसका डोमेन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। तो अपने डोमेन में ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा बिकॉज पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस। root under x is continuous when x is greater than equal to 0. So root under x minus 1 is continuous when x minus 1 is greater than equal to 0. So f of x is continuous in closed interval 1 to 3. F of x is also differentiable in open interval 1, 3. LMDT के लिए यही दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। डिफरेंशिएबल भी है क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड रूट एक्स फंक्शन इज आल्सो डिफरेंशिएबल। तो कंपोजिशन है उन दोनों का तो ये भी डिफरेंशिएबल होगा 1 2 3 में अपने डोमेन में। ठीक, अब मुझे ये सी निकालना है। दैट मींस LMDT का जो सी होता है वो कैसे निकालते हैं देखिए। सबसे पहले तो मैं इस फंक्शन का एफ डैश एक्स निकाल लूंगा एंड दैट इज 1/2 रूट अंडर एक्स माइनस 1। कंपोजिशन है तो इसलिए x माइनस 1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इतना आएगा और x माइनस 1 का x के रिस्पेक्ट में तो 1 ही होता है तो इतना ही आ जाएगा। ठीक है, नाउ c निकालना है। सो लेट x इक्वल टू c। तो f डैश c इज 1/2 रूट अंडर c माइनस 1। ये आ गया। LMDT कहता है कि f डैश c जो होता है वो f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a के बराबर हो जाता है। LMDT थ्योरम याद करिए क्या है, यदि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है a टू b में और डिफरेंशिएबल है a टू b में ओपन इंटरवल में तो f डैश c जो होता है वो f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a के बराबर हो गया होगा।
यही है कम से कम एक वैल्यू ऑफ सी के लिए। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि इसके एफ ऑफ ए निकालूंगा, दैट इज एफ ऑफ 1 एंड दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस 1 एंड दैट इज 0। एफ ऑफ 3 निकालूंगा जो कि आएगा रूट अंडर 3 माइनस 1 दैट इज रूट अंडर 2। ओके, सो नाउ according to LMVT, f dash c must be equal to f of b, that is f of 3 minus f of 1 divided by 3 minus 1. And f dash c is 1 upon 2 root under of c minus 1, that must be equal to f of 3, that is root 2 minus f of 1, that is 0 divided by 3 minus 1, that is 2. Okay, and from here we get 1 upon 2 root under c minus 1 must be equal to 1 upon root 2. Here that is root 2 by 2 is 1 by root 2, and from here we get that the square root of c minus 1 must be equal to 1 by root 2. Here that we get from here, and solving this what we will get, that simply implies that the squaring both sides we get c minus 1 is equal to 1 by 2, the squaring both sides, and from here we get c is equal to 1 plus 1 by 2, and from here we get c equal to 3 by 2, and that is the value of c for LMVT. That means at this point c equal to 3 by 2, at c equal to 3 by 2, which belongs to open interval 1 comma 3, where f dash c is becoming equal to f of b minus f of a upon b minus a, that is mean value theorem. यही वो पॉइंट है जहां पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा वो 1 और 3 पॉइंट को जोड़ने वाला जो कॉर्ड होगा उसके स्लोप के बराबर हो गया होगा, उस टेंजेंट का स्लोप है ना 3/2 पॉइंट पे। सो दैट पॉइंट इज 3/2 पॉइंट। सो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ LMVT. One more problem we will do on this. The next problem which we will do on this is first number problem is verify Rawls theorem for f of x equal to sin 2x in 0 to pi by 2. Okay, so now first of all we will see that is this function continuous and differentiable in 0 to pi by 2, and as we know this fact that sin x is a continuous function, so sin 2x must be continuous in 0 to pi by 2, and also we can also say that 2x is a polynomial function and continuous everywhere. So sin of 2x is also continuous because sin x is also continuous. तो कंपोजिशन है 2x और sin x का, और दोनों ही कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो fx is continuous in closed interval 0 to pi by 2, and a similar argument we can give for differentiability. So we can say that f of x is differentiable in open interval 0 comma pi by 2. Okay, साइन एक्स ये सब जो है वो कॉस एक्स ये सब सीधे साधे फंक्शन है, ये हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं, समझ रहे हैं बात, और डिफरेंशिएबल भी होते हैं, इसलिए और पॉलिनोमियल फंक्शन इसके अंदर है 2x है ना, वो भी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है, तो इनका जो मिक्सिंग होता है वो भी कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल होता है। ये सब चीजें जो है वो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए हमें। अब बात आती है कि एफ ऑफ 0 कितना है, तो एफ ऑफ 0 यदि आप निकालेंगे तो दैट इज साइन 2 into 0 and that is sin 0 and that is 0. Sin f of pi by 2, okay, and that is equal to sin 2 into pi by 2 and that is sin pi and that is also 0. So what we can easily see that continuous भी है, differentiable भी है, और f of 0 f of pi by 2 के बराबर भी है, f of 0 f of pi by 2 के बराबर है। तो Rawls theorem is applicable, Rawls theorem applicable है यहाँ। तो हमें अप्लीकेबल तो है ही, तो हमें क्या करना है, c निकालना है कि यहाँ पे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कहाँ 0 हुआ है। तो f डैश x निकालते हैं,
sin 2x का डिफरेंशिएशन हो जाता है आपका cos 2x एंड 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 cos 2x, put it equal to 0. Now for x equal to c, f dash c is equal to 2 cos 2c and put it equal to 0. Okay, so from here we get cos 2c is equal to 0, and in 0 to pi by 2, 2c must be equal to pi by 2. cos 2c 0 कहाँ होगा, तो 2c इक्वल टू पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 0 होता है, तो यहाँ से c का वैल्यू कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 आएगा, विच बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2, दैट इज रॉल्स थ्योरम। तो कम से कम एक वैल्यू जरूर होगी c की, जो कि 0 टू 0 पाई बाई 2 में लाई करने वाला होगा, जहाँ पे f dash c 0 हुआ होगा, ठीक। तो दैट इज रॉल्स थ्योरम। नाउ वी विल डू मीन वैल्यू थ्योरम, LMVT। सो verify LMVT for the function fx equal to x minus 3 into x minus 6 into x minus 9 in 3 to 5। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे चेक करूंगा कि क्या ये फंक्शन कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है 3 to 5 में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं पॉलिनोमियल फंक्शन है, एंड पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कंटीन्यूअस, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, so we can easily say that ये फंक्शन fx is continuous in 3 to 5 closed interval, fx is differentiable in open interval 3 to 5. The reason is fx is polynomial function, and polynomial function is continuous and differentiable everywhere. That is the theorem. So we must remember that. And now we can easily find, we have to verify LMVT. So for verifying the LMVT, we will find f dash x first. So f dash x is equal to, how will you find the f dash x of this function? So that is equal to x minus 3 will taken outside, and then the differentiation of this is equal to x squared का differentiation कितना हो जाएगा आपका 2x, फिर माइनस 9x माइनस 6x है, तो वो हो जाएगा आपका माइनस 15x, so that is माइनस 15, और बाकी तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। और दूसरा पार्ट जो है वो क्या रहेगा आपका x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 9 ही रहेगा, x माइनस 3 का 1 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये कितना आने वाला है x इंटू 2x, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 6x प्लस 45 प्लस x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6x प्लस 54, and it is equal to 2x square and x square, that is 3x square minus 15x minus 9x minus 6x is minus 30x, and it is also minus 6x, so 36 हो जाएगा यहाँ पे, okay sorry, and this is 45 and 54, that is 99. So it is 3x square minus 36x plus 99. So f dash c can also be written as 3 times x squared minus 12x plus 33. Okay. So f dash c is equal to 3 times c squared minus 12c plus 33. Now the LMVT is, there exists at least one c where f dash c must be equal to f of b minus f of a upon b minus a. ठीक है, तो यहाँ पे f of b निकाल लेते हैं, f of a निकाल लेते हैं। तो f of a कितना है यहाँ पे, दिस इज a एंड दिस इज b, तो f of 3 निकाल लेते हैं। सो दैट इज f of a, that is f of 3 and that is 0, f of 5, that is f of b is f of 5 and that is 5 minus 3, 5 minus 6 into 5 minus 9, and that is 5 minus 3 is 2 into minus 1 into minus 4, and that is 8. Now put f dash c equal to f of b minus f of a upon b minus a. It will give us f dash c, that is 3 times c square minus 12c plus 33 is equal to f of b, that is 8
माइनस 0 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3। अभी जो एक्सप्रेशन लिखा था उसको सॉल्व जब करोगे तो आपके पास आएगा 3 इंटू सी स्क्वायर माइनस 12c प्लस 33 इक्वल टू 4। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने पास आएगा 3c स्क्वायर माइनस 36c प्लस 99 माइनस 4 इक्वल टू 0। इस 4 को इधर ले आते हैं तो यहाँ से हमारे पास आएगा 3c स्क्वायर माइनस 36c प्लस 95 इक्वल टू 0। यहाँ से c कैसे निकलेगा? c का वैल्यू एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो प्लस माइनस b दैट इज माइनस ऑफ माइनस 36 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 36 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 95 दैट इज 4a इंटू c डिवाइडेड बाय 2 इंटू a दैट इज 2 इंटू 3 6 दैट इज 36 प्लस माइनस रूट अंडर 36 स्क्वायर दैट इज 1296 माइनस 12 into 95 that is 950 plus 1140 ओके डिवाइडेड बाय 6। ये आप सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा, यहाँ से आएगा 36 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1296 माइनस 1140 that is 156 divided by 6 and that is equal to 36 by 6 that is 6 plus minus square root of 156 by 36। ये लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो c की जो वैल्यू आ रही है, यहाँ से c की जो वैल्यू आएगी नेक्स्ट स्टेप में वो कितना आएगा 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 36। 12 3 जा 36 so you can write 6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 13 बाय 3। सो कौन सा ऐसा वैल्यू है जो कि 3 से 5 के बीच में लाई कर रहा है? तो यदि आप देखें तो c इक्वल टू 6 प्लस रूट अंडर 13 बाय 3 डज नॉट बिलोंग्स टू 3 to 5। ओके, सो दिस इज नॉट द आंसर बट 6 माइनस रूट 13 बाय 3, c इक्वल टू 6 माइनस रूट 13 बाय 3 बिलोंगिंग टू 3 to 5 इंटरवल। ओके, ओपन इंटरवल में लिख लेते हैं क्योंकि तो ओपन इंटरवल में लाई करना चाहिए। ठीक है, सो देयर एग्जिस्ट यू कैन से दैट LMBT वेरीफाइड। ओके, so that is the answer. So there exists at least one c where f dash c become f of b minus f of a upon b minus c, that is the Lagrange's mean value theorem। तो आज के क्लास में हम लोगों ने रॉल्स थ्योरम और LMBT ये दोनों पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में जो है वो कुछ और चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग